Hello everyone, this is Monami Das. In our last session, I discussed about the meaning and characteristics of educational psychology and also the scope of educational psychology. So today I discuss about the methods of educational psychology, which is related to the unit 4 second part, that is psychology and its significance. So if anyone joined the session for the first time, please subscribe the channel and like share that you can get the future videos. So let's start the topics. So in the methods of educational psychology, there are several methods are there. So I discuss about those methods one by one. So first of all, in the second year book, in this book they give the 8 methods of educational psychology, but the most probably or the important 3 methods are there in educational psychology, that is introspection method, observation method and experimental method. But in this book they give in the board and also others books they give 8 methods of educational psychology. So I discuss all one by one. So first one is introspection method, second one is observation, third one is experimental method, fourth one is clinical method, then sociometric, project method, statistical method and case study method. So today I discuss about the introspection method of educational psychology. So question arises like this: write about introspection method of educational psychology, or maybe ask the write about the merits and demerits of introspection method. Or from this, sometimes ask like this: means what is the oldest method of educational psychology? Then remember, it is the oldest method of एजुकेशनल साइकोलॉजी मीन्स सबसे पहले ये इंट्रोस्पेक्शन मेथड ही आया था एजुकेशन साइकोलॉजी में, और इसलिए इसको ओल्डेस्ट मेथड भी कहा जाता है. और समटाइम्स दे आस्क दिस क्वेश्चन, व्हाट इज द from which word the introspection method come from? That is Latin words. It comes from the Latin word. That is first one is intro and then next one is sphere, or like this into and spection. That is into, into, into and spection, tion, introspection, into and spection. So into means within and the spection means look or to look. So therefore from the introspection we may say that introspection means self observation, means look within. मतलब इंट्रोस्पेक्शन जो मेथड है और जो टर्म इंट्रोस्पेक्शन है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है, जो इंट्रो जिसका मीनिंग है विदिन और स्पेयर और स्पेक्शन जिसका मीनिंग है टू लुक. सो इन दोनों को हम अगर मिला देंगे तो क्या होगा? देयरफॉर इट इम्प्लाइज सेल्फ ऑब्जर्वेशन और लुकिंग विदिन. मतलब इंट्रोस्पेक्शन मेथड में यही बोला गया है कि सबसे पहले सेल्फ ऑब्जर्वेशन मीन्स अपने आप को समझना चाहिए, बाकी सबको समझने से पहले और दूसरों को समझने से पहले खुद का फीलिंग्स क्या है, खुद का नीड क्या है, खुद क्या कर सकते हो, स्ट्रेंथ एंड वीकनेस खुद का, वो समझना बहुत ज़रूरी है. सो अकॉर्डिंग टू दिस मेथड क्या है? बिफोर स्टडी अदर्स मेंटल स्टेटस,
it is necessary that one should study their own mental status. So इंट्रोस्पेक्शन मेथड में बेसिकली ये बोला गया है कि किसी और के मेंटल स्टेट मीन्स उसका थिंकिंग क्या है, वो क्या सोच रहा है, उसका इमोशन क्या होगा, उसका एक्टिविटी क्या होगा, वो क्या क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकते, वो जानने से पहले अपने आप को समझना बहुत ज़रूरी है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर अभी 2 दिन बाद अगर मैं बोलूँ कि मैं एग्ज़ाम लूँगी या फिर क्लास टेस्ट लूँगी, और ऑनलाइन, अभी तो ऑनलाइन टेस्ट होगा ना, ऑनलाइन टेस्ट लूँगी, तो अगर कोई स्टूडेंट ये सोच रहा है कि मेरे जो फ्रेंड है वो इस एग्ज़ाम में कितना मार्क मिलेगा, अगर उसको 15 में 15 मिल गया तो, और मुझे अगर 15 ना मिला तो क्या होगा, अगर ऐसा सोच रहा है तो क्या होगा, वो सेल्फ ऑब्जर्वेशन और ख़ुद के बारे में सोचना नहीं होगा. वो क्या होगा, दूसरों के बारे में, मीन्स अपने फ्रेंड्स के बारे में सोच रहा है, वो उसको 15 मार्क मिलेगा या फिर अगर ज़्यादा मार्क मिल गया तो क्या होगा. मीन्स दे कैन नॉट clear about their goal. They are continuously thinking about others' mental status. So इंट्रोस्पेक्शन मेथड यही बोलता है कि पहले अपने मेंटल स्टेटस के बारे में जानने की कोशिश करो, जानो, अपने खुद की स्ट्रेंथन को जानो, वीकनेस को जानो, फिर अगर हुआ तो दूसरों को समझ सकते हो. और मैं ये भी बोल सकते हैं कि अगर हम अपने आप के इमोशन को समझ पाएंगे तो ही हम दूसरों के इमोशन को क्या कर पाएंगे, अंडरस्टैंडिंग कर पाएंगे. सो दिस इज़ द ऑल अबाउट इंट्रोस्पेक्शन मेथड, और इट इज़ द मीनिंग ऑफ इंट्रोस्पेक्शन मेथड. आई होप यू ऑल आर क्लियर अबाउट द मीनिंग ऑफ इंट्रोस्पेक्शन मेथड्स. सो लेट्स डिस्कस अबाउट द merits and demerits of introspection method. So merits of introspection method. So first of all, it is very easiest method of educational psychology. ये सबसे easiest method है, सबसे easy है. It does not need any tool or laboratory as the subject and the investigator in the same. मतलब इस इंट्रोस्पेक्शन मेथड में कोई एक्सपेरिमेंट नहीं होता है. मीन्स जैसे कि लेबोरेटरी में क्या होता है, एक एक्सपेरिमेंटर रहता है और टूल यूज़ होता है और एक्सपेरिमेंट किया जाता है. मीन्स एक एक्सपेरिमेंटर और एक्सपेरिमेंटी, मीन्स जो एक्सपेरिमेंट करता है उसको एक्सपेरिमेंटर बोलते हैं, और जिसका एक्सपेरिमेंट किया जाता है उसको एक्सपेरिमेंटी बोलते हैं. सो इन इंट्रोस्पेक्शन मेथड में क्या नहीं होता है, इन्वेस्टिगेशन जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट नहीं होता और इन्वेस्टिगेटर नहीं होता है, क्योंकि इस इंट्रोस्पेक्शन मेथड में हम खुद ही खुद को जज करते हैं, खुद ही खुद को समझने की कोशिश करते हैं. थर्ड नंबर क्या है. सो दिस मेथड गिव अपॉर्चुनिटी टू नो ओन सेल्फ फर्स्ट देन नो अदर्स. मीन्स ये जो इंट्रोस्पेक्शन मेथड है वो पहले अपॉर्चुनिटी देता है कि खुद ही खुद को समझो, फिर दूसरों को समझने की कोशिश करो. सो दिस इज़ द मेरिट्स ऑफ इंट्रोस्पेक्शन मेथड. There are some others merits also there, but in the maximum time in the exams they give the merits and demerits together. So they give the 4 marks, or sometimes they give only 2 marks for merits. So it's enough for the exam purpose. Next one, demerits of introspection method. So अभी merits के बारे में जान लिया, तो इसमें से demerits क्या हो सकता है ये जानना ज़रूरी है. द मेंटल कंडीशन चेंजेस फ्रिक्वेंटली. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इंट्रोस्पेक्ट मेंटल स्टेट. सो ये बोला गया है कि हमारे जो मेंटल स्टेट है, मीन्स हमारे जो माइंड है वो क्या होता है, फ्रिक्वेंटली मीन्स सेकंड में चेंज होता है. जैसे कि अभी मैं बोल सकती हूँ, अभी कुछ एक
चीज़, और मैं बाज़ार गई तो कोई एक चीज़ मुझे पसंद आया, तो घर आते आते वो मैंने और कोई बहुत सारे चीज़ बाज़ार में देखी, मैंने एक चीज़ और हो सकता है एक ड्रेस ख़रीदा, उस ड्रेस ख़रीदने के बाद मैंने आते आते और कहीं उससे भी ज़्यादा अच्छी और मुझे जो अच्छा लगा उससे भी ज़्यादा मैंने वो ड्रेसेस देखा, तो क्या होगा, मेरा स्टेट ऑफ माइंड क्या होगा, ड्रेस खरीदने के बाद दूसरा जो देखा, उसके बाद जो देखा, उसके बाद जो देखा, सेकंड में क्या हो रहा है, मेरा माइंड चेंज हो रहा है। तो इन स्टेट में और इस कंडीशन में क्या होगा, अपनी मेंटल स्टेट जो है, मेंटल कंडीशन है, उसको इंट्रोस्पेक्ट और उसको जानना अच्छे से नहीं जान सकते, क्योंकि वो चेंजेस हो रहे हैं। अगर एक चीज़ फ्रिक्वेंटली चेंज हो रहा है, वो हम नहीं पकड़ पाएंगे या फिर समझ पाएंगे, इसलिए बोला गया है मेंटल कंडीशन समझना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। सेकंड वन इज द डेटा एक्वायर्ड थ्रू दिस मेथड आर नॉट एट ऑल रिलायबल। जो इस इंट्रोस्पेक्शन मेथड्स के यूज़ करके हमने जो डेटा एक्वायर किया, जो डेटा कलेक्ट किया है, वो रिलायबल नहीं होगा, क्योंकि मेंटल स्टेट जो है वो फ्रीक्वेंटली चेंज होगा। अगर फ्रीक्वेंटली चेंज होगा तो रिजल्ट क्या होगा, फ्रीक्वेंटली चेंजेस होते रहेंगे। इसलिए ये अगर मेंटल स्टेट फ्रीक्वेंटली चेंज होते जाएंगे तो क्या होगा, रिजल्ट भी चेंज होते जाएगा। तो मेंटल स्टेट चेंज होगा, रिजल्ट चेंज होगा, तो ये एक स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। सो हेयर द रिलायबिलिटी मीन्स कंसिस्टेंसी ऑफ रिजल्ट। मीन्स अगर मैंने अभी एक टेस्ट लिया, उसका एक और दो स्टूडेंट का टेस्ट लिया, उसका आंसर जो दिया मैंने, अगर फिर से वो टेस्ट लिया, अगर उसका आंसर सेम पहले जैसा आ रहा है तो उससे मैं क्या बोलूँगी, रिलायबल बोलूँगी। मीन्स पहले जैसा रिज़ल्ट की तरह अभी भी रिज़ल्ट सेम आ रहा है। अगर वो रिज़ल्ट सेम नहीं आ रहा है, रिज़ल्ट में कुछ डिफरेंसेस है, तो वो क्या नहीं होगा, रिलायबल नहीं होगा, क्योंकि मेंटल स्टेट चेंज होते रहते हैं, इसलिए ये रिलायबल नहीं है। थर्ड नंबर पॉइंट है, दिस मेथड कांट बी अप्लाइड ऑन चिल्ड्रन एंड मेंटली सिक पर्सन। क्यों हम लोग ये इंट्रोस्पेक्शन मेथड चिल्ड्रन और मेंटली जो इल है, सिक मतलब जो मेंटली थोड़ा पागल है, उन लोगों के ऊपर यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि चिल्ड्रन जो होते हैं उनका माइंड इंस्टेंटली चेंज होता है, सेकेंडली चेंज होता है। और मेंटली सिक वो तो पता ही है सबको कि वो लोग कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, क्या करते हैं, उन खुद को भी नहीं पता होता है। तो ये चिल्ड्रन और मेंटली सिक पर्सन के ऊपर हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। So those are the merits and demerits of introspection method. I hope you all are understand the introspection method and the merits and demerits of introspection method. So thank you everyone. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे।